بیٹا اللہ کا واسطہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ، یہاں تمہارا بھائی مجھے مارتا ہے اور بہو مجھے کئی کئی دن بھوکا رکھتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا اور ابا بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا آپ میرے پاس آ جائیں، میری بیوی کو پتہ چلا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ تمہارے بڈھے باپ کو میں روٹیاں بنا بنا کر نہیں کھلا سکتی اور نہ ان کے کپڑے دھو سکتی ہوں، تم انہیں منع کر دو۔ اگلے روز ابا آئے تو بیوی نے گھر کا دروازہ نہ کھولا، مجھے کہا خود ہی بیل بجا بجا کر چلے جائیں گے۔ آدھی رات کو طوفانی بارش شروع ہو گئی، میں بیوی سے چھپ کر ابا کو لینے گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آج میری شادی کی سالگرہ تھی اور میں نے اس دن کو خاص بنانے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دی تھی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے کیک کے اوپر سے موم بتیاں بجھائیں اور کیک کاٹ کر تالیاں بجانے لگی۔ میں انتہائی محبت سے کیک اٹھا کر اپنی بیوی کو کھلانے لگا تھا کہ اچانک میرے ابا کی مجھے کال آ گئی۔ میں نے جیسے ہی فون کو کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میرا سارا موڈ آف کر دیا۔ بیٹا اللہ کا واسطہ مجھے اپنے پاس بلا لو، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی جیسے وہ بہت دیر سے رو رہے ہوں۔ میری مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ کیا ہوا ابا؟ خیریت؟ تمہاری بھابھی کھانے کو نہیں دیتی اور تمہارا بھائی؟ ابا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں جیسے الفاظ ادا کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو۔ بیٹا بہت مارتا ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں ایک دن بھی مزید نہیں رہ سکتا۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ بیٹا میں مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا تھا اور نایاب نے فوراً میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا ابا کا فون تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بھابھی ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ نایاب کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے الجھن میں موبائل کو گھورا۔ ابھی تو کچھ نہیں کہا، لیکن اگر ابا واقعی مشکل میں ہیں تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ نایاب نے ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل مجھ سے لے لیا اور ایک سنجیدہ لہجے میں بولی عقل سے کام لو یاسر، ہم خوش ہیں، پرسکون ہیں، اگر تم نے ابا کو یہاں بلا لیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تمہیں نہیں معلوم بوڑھے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے والد ہیں۔ میں نے احتجاج کیا اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا۔ مت بھولو یہ گھر کس کا ہے، اگر تم نے انہیں یہاں لے کر آنے کا سوچا بھی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ نایاب کی باتوں نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بولا ہی نہیں۔ میرے ایک طرف میرا باپ تھا جو تکلیف میں تھا اور دوسری طرف میری بیوی جس کے بغیر میری زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا یاسر۔ نایاب کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر اس کے الفاظ میں دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر ابا کو بہانہ بنا کر کہہ دیا ابا میں شہر سے باہر ہوں، جیسے ہی واپس آتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کال بند ہو گئی لیکن میرے دماغ میں خیالات کی آندھی چل رہی تھی، لیکن مجھے مسکرانا پڑا کیونکہ میری امیر بیوی کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس پہلی اینیورسری میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو جائے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا تھی، لہٰذا اپنی شادی کی پہلی سالگرہ میں پورے اہتمام سے اس لیے منانا چاہ رہا تھا کہ پچھلی تمام خفگی ختم ہو جائے اور اس کا دل مجھ سے صاف ہو جائے، کیونکہ اس سے ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری زندگی عجیب موڑ لیتے لیتے اچانک ایک ایسی سمت میں مڑ گئی تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں ایک عام سا ورکر تھا، ایک معمولی سا اسسٹنٹ جو فائلوں کے انبار میں دب کر گزارا کر رہا تھا۔ میرے خواب بہت بڑے نہیں تھے، بس ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تھی، لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میری کمپنی کے باس کی بیٹی نایاب مجھ پر مر مٹی۔ وہ حسین تھی، دولت مند تھی اور سب سے بڑھ کر مجھے چاہتی تھی۔ پہلے پہل مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایک امیر زادی میری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بھی اس کے سحر میں گرفتار ہونے لگا۔ میری زندگی ایک پل میں بدل گئی تھی۔ میں جو پہلے ایک اسسٹنٹ کی کرسی پر بیٹھا تھا، دن بھر اعداد و شمار میں الجھا رہتا تھا، اب اسی کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ میری تنخواہ کئی گنا بڑھ گئی تھی، میرے پاس ایک چمچماتی نئی گاڑی آ گئی
और एक फ्लैट जो नायाब ने मुझे गिफ्ट में दिया था। मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगा, वही लोग जो मुझे नजरअंदाज करते थे अब मेरे आगे पीछे फिरते थे। दफ्तर में मेरा एक रौब और दबदबा था और बाहर की दुनिया में मैं एक अमीर आदमी की तरह जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन नायाब ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं हैरान था, खुश भी था और शायद खौफजदा भी, लेकिन मैंने फौरन हाँ कर दी। ये शादी मेरे लिए ख्वाबों की ताबीर थी। मैं एक आम इंसान से एक मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद खानदान का दामाद बनने जा रहा था। शादी धूमधाम से हुई, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खुशी महज एक शराब थी। शादी की पहली रात थी। नायाब ने साफ लफ्जों में कह दिया था, यासिर, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी और की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अलग थलग रहेंगे, किसी का कोई हक नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में दखल दे, हत्ता कि तुम्हारे अपने वालिदैन का भी। मैंने उसकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा वो बस अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती है, लेकिन वक्त के साथ ये बात एक जंजीर बन गई जो मेरे वजूद को जकड़ने लगी। मेरी शादी के बाद सबसे बड़ा फैसला ये था कि अब्बा को कहाँ रखूं। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन नायाब ने दो टोक कह दिया था, या मैं या तुम्हारे वालिद। मैं बेबस हो गया। मैंने चाहा कि कम से कम अब्बा को अपने करीब किसी अच्छी जगह रख दूं, लेकिन नायाब ने साफ इनकार कर दिया। मैं मजबूर होकर उन्हें अपने बड़े भाई के पास भेजने पर मजबूर हो गया। शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी बदली कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। नायाब एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी मलका थी जिसके आगे मैं बस एक गुलाम था। मैं क्या पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, क्या खाऊंगा, बल्कि सच बताऊं कि कितना सांस लूंगा, ये सब कुछ वो खुद तय करती थी, और बदले में मुझे मनचाही ख्वाहिशात को हासिल करने का मौका मिल जाता। चूंकि सौदा बुरा नहीं था, इसलिए मैं भी खामोशी से अपना वक्त गुजारने लगा। मुझे उसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, कैद थी। मैं उसकी पसंद का खाना खाता, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता। मेरी कोई अपनी राय, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रही थी। वक्त गुजरता गया और मैं उस जिंदगी का आदी होता गया। अब्बा कभी कभार फोन करते, लेकिन मैं मसरूफियत का बहाना बनाकर ज्यादा बात ना कर पाता। मुझे मालूम था कि वो तकलीफ में हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन उनका फोन आ गया। वो मेरे पास आना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े भाई और भाभी के रवैयों से शदीद नाला थे, लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी तहबाला हो गई थी। उस वक्त तो मैंने उनके आगे बहाना कर दिया। 2 दिन गुजर गए और मैंने अब्बा को दोबारा फोन नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझसे कोई राब्ता किया। मैं चाहता था कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन दिल बेचैन था। तीसरे दिन शाम के वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने की हॉल से देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अब्बा मेरे लग्जरी फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। उनके कपड़े मैले, चेहरा जर्द और आंखों में बेबसी की इंतहा थी। वो लरसती हुई आवाज में दस्तक देते बोलते जा रहे थे, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे अब्बा, जिन्हें मैंने हमेशा मजबूत और पुरसुकून देखा था, आज टूटे हुए और बेसहारा लग रहे थे। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था, नायाब तेजी से मेरे करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका चेहरा स्पॉट था और चेहरे के तासुरात इंतहाई सख्त थे। क्या हुआ? दरवाजे पर कौन है? अब्बा। मेरे मुंह से फिंसी फिंसी सी आवाज निकली तो वो एकदम गुस्से से बोली, ये यहाँ क्यों आए हैं यासिर? उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। मैंने बेबसी में कहा, नायाब, ये मेरे वालिद हैं। कहाँ जाएंगे ये जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। उसका लहजा जहर में बुझा हुआ था। मैं बोलना चाहता था, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। नायाब मेरे हर फैसले पर हावी थी। यहाँ से तुमने उनका कोई ठेका नहीं उठा रखा। तुम्हारा भाई और भावज उन्हें अच्छे से रख सकते हैं और ये उनका भी फर्ज है। तुम हर महीने उन्हें पैसे भेज देते हो, ये काफी है। और दरवाजे से हट जाओ, ये थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाएंगे। नायाब ने हुक्माना अंदाज में कहा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे सामने वो बाप था जिसने मुझे पाला, मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, और पीछे वो बीवी थी जिसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी मर्जी भी छीन ली। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, एक ऐसी जंग जिसमें मैं खुद अपनी जात से शिकस्त खा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दरवाजे के की होल से देखा। अब्बा मायूस से खड़े दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे और ठंड में कांप रहे थे। रात हुई, आसमान पर बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
میں نہ جانے کس بے چینی میں اب تک جاگ رہا تھا۔ میری نظریں کھڑکی پر جمی تھیں جس پر پانی کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر نیچے بہ رہی تھیں، جیسے کسی بے بس روح کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر پردہ سرکایا، کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا ابا بارش میں بھیگ رہے تھے اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا اور لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، ابا جو دروازے کے باہر بھیگ رہے تھے، کانپ رہے تھے اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ ضمیر کی جنگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہ وہی باپ ہے جو تمہارے بچپن میں تمہیں کندھوں پر بٹھا کر میلوں چلتا تھا، اور یہ وہی باپ ہے جس نے تمہارے لیے اپنا آرام قربان کیا اور آج اسے بے یار و مددگار باہر چھوڑ رہے ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے پہلو بدلا اور نایاب کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر پرسکون نیند سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اٹھا، کھڑکی کی طرف گیا اور باہر جھانکا۔ ابا اب بھی وہیں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ بارش سے ان کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، جسم تھر تھرا رہا تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ میرے سینے میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ اب بس، میں نے خود سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا کہ اسے کھول کر ابا کو اندر لے آؤں، لیکن یہ جان کر مجھے شدید غصہ آیا کہ نایاب سونے سے پہلے دروازے کو لاک کر چکی تھی۔ میں تیزی سے نایاب کی طرف بڑھا۔ نایاب، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ نیند سے بد مزہ ہو کر بڑبڑائی، کیا مسئلہ ہے یاسر؟ سونے دو نا، چابی دو۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر ہنسی جیسے میں کوئی ناسمجھ بچہ ہوں۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نایاب، چابی دو فوراً۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ ہرگز نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا اور تکیے کے نیچے ہاتھ مارا۔ یہ گھر تمہارے باپ کے لیے نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وہ چلے جائیں گے، صبح تک فکر نہ کرو۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، لیکن نایاب نے میرا بازو پکڑ کر روکا۔ یاسر، مت کرو یہ، مجھے چابی دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے غصے سے کہا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ نایاب نے تیزی سے چابی کو مٹھی میں دبا دیا۔ یہ چابی نہیں ملے گی یاسر، اس نے غصے سے کہا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا۔ وہ چیخ اٹھی اور چابی فرش پر گر گئی۔ میں نے جھپٹ کر چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑا۔ یاسر، رک جاؤ، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ۔ نایاب چیختی رہی، لیکن میں اب کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چابی تالے میں ڈال کر گھمائی۔ کلک کی آواز آئی، تالا کھل چکا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک قدم باہر رکھا، میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ابا زمین پر بے حس و حرکت پڑے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ بارش کے قطرے ان کے جھریوں بھرے چہرے پر گر رہے تھے اور جسم مکمل ساکت تھا۔ ابا، میں چیخ پڑا، ان کے پاس جا کر جھک گیا۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ برف کی مانند ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ابا، آنکھیں کھولو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ابا، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن ابا خاموش تھے۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ میرے دل میں خوف کا ایک ایسا شدید طوفان اٹھا۔ میں نے ان کی نبض چیک کی اور تب میرے اندر سب کچھ جیسے رک گیا۔ نبض چلنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ میں نے فوراً ان کے سینے پر کان رکھا، لیکن کوئی دھڑکن بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں سر ہلاتا پیچھے ہٹنے لگا۔ نایاب دروازے پر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، البتہ نہ اس کے چہرے پر کوئی خوف تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ میں اس پر دھاڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا یاسر، تم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ دروازہ بند رکھو گے۔ میں نے تو صرف تمہیں روکا تھا، تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مرد ہوتے تو میری نہ سنتے۔ اب مجھے بلیم مت کرو۔ اس کا لہجہ شفاف تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنے باپ کے بے جان پڑتے جسم کو دیکھا جو بارش میں پڑا تھا، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن میرے دل میں جو طوفان برپا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابا کے بے جان جسم کو دیکھ کر میں نے جو اذیت محسوس کی تھی وہ کسی اور ہی سطح کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میرے کانوں میں ابا کی باتیں گونج رہی تھیں، بیٹا، مجھے اپنے پاس بلا لو، میں مزید نہیں رہ سکتا۔ میں نے انہیں بلایا نہیں، انہیں اندر آنے نہیں دیا، انہیں باہر بھیگنے دیا۔ اب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ابا، میں نے دل شکستہ آواز میں پکارا اور پھر رونے لگا۔
मैं उन्हें झिंझोड़ रहा था जैसे किसी मुआवजे की उम्मीद हो। उसी लम्हे मेरे अंदर के बेबस बेटे ने हाथ जोड़कर दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बा को कुछ मत होने देना। तभी दरवाजे पर खड़े पड़ोसी ने मेरी मदद की और हम अब्बा को फौरन अस्पताल ले गए। रास्ते भर में मेरी सांसें अटकी हुई थीं। मेरा जहन कुछ सोचने के काबिल नहीं था, बस एक ही दुआ लबों पर थी कि मेरे अब्बा को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने अब्बा को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। मैं बाहर बेबसी से बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जब डॉक्टर बाहर आया और मेरी तरफ संजीदा नजरों से देखा, आप अपने अब्बा से फौरन मिल लें, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं लरजती टांगों से अब्बा के पास पहुंचा। वो निढाल पड़े थे, आंखें नम थीं, जैसे किसी शदीद थकन ने उन्हें तोड़कर रख दिया हो। मैंने उनका हाथ थामा। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अब्बा, मैं यहाँ हूँ, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी आवाज भर आई थी। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, एक नहीफ सी मुस्कुराहट लबों पर आई और फिर उन्होंने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं। मैं साकित खड़ा था, जैसे सांस लेना ही भूल गया हूँ। अगले 24 घंटे किसी कयामत से कम नहीं थे। मैं अस्पताल में ही रुका रहा। नायाब को फोन पर इतला दी तो उसका रवैया बिल्कुल सर था। तुम तो हॉस्पिटल के ही होकर रह गए हो, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। उसके अल्फाज मेरे दिल पर कोड़े की तरह बरसे, लेकिन मैं उस वक्त उससे उलझने की हालत में नहीं था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब्बा बच गए। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मैं सजदे में गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अब्बा को अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुके थे। अब उन्हें घर लेकर जाना एक आजमाइश से कम नहीं था। मुझे मालूम था कि नायाब के तेवर सख्त होंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब्बा मेरे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिस वक्त हॉस्पिटल से निकला, शदीद तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक तूफान मेरे सीने के अंदर भी तबाही मचा रहा था। मुझे इस बात का शदीद अफसोस था कि अब्बा पूरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में दाखिल रहे, लेकिन नायाब 1 घंटे के लिए भी उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं आई। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे अब्बा हैं और बीमार हैं। तंदुरुस्त होते तो वो अलग बात थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी उसका दिल नरम नहीं पड़ा। किस किस्म की औरत है, क्या अमीरों के सीने में दिल नहीं होता। मैं नायाब के इस रवैये पर शदीद परेशान हुआ। अब अब्बा को घर ले जाते हुए मुझे दोहरी परेशानी थी। एक तो अब्बा की बीमारी, उन्हें शदीद निगहदाश्त की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ नायाब का मूड था जो पल पल बदलता था, और अब तो अब्बा की मौजूदगी में न जाने उसका रवैया कैसा होता। इसी बात ने मेरा दिल खौफजदा करके रख दिया। मैंने तो अब्बा के सामने नायाब की बहुत तारीफें की थीं और उन्हें बताया था कि मैं ये शादी करके बहुत खुश हूँ। अब अगर उन्हें अंदर की हकीकत का पता चलेगा तो वो तो मुझ पर ही हंसेंगे कि कवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल भी भूल गया। और मैं अब्बा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही अब्बा ने मेरी निस्बत बड़े भाई को तरजीह दी थी। उनके मुकाबले में मुझे हमेशा टोका जाता था। अब्बा की तान हमेशा इस बात पर आकर टूटती थी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है। मेरी निस्बत मेरे बड़े भाई ने भी तालीम भी नुमाया नंबरों से मुकम्मल की, उसकी जॉब भी जल्दी लग गई और फिर खानदान में ही उसकी मर्जी से शादी भी हो गई। तो मैं अंदर ही अंदर अपने भाई से मुकाबला करने लगा कि कम से कम उस जितना नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं रहूंगा। इसलिए तालीम मुकम्मल करते ही मैं जॉब ढूंढने लगा, और जब नायाब की सूरत में मुझे एक ATM कार्ड नजर आया तो मैंने उसे कबूल करने में जरा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि मुझे हर सूरत में अपने भाई के मुकाबले में खुद को साबित करना था, और उसके लिए मुझे अपनी आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि जब मैं उसके घर के सामने अपनी बड़ी सी गाड़ी खड़ी करता तो मेरे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून और गुरूर उतरता। अपने ब्रांडेड 3 पीस सूट और सिगार से मैं उस पर जितना रोब डाल सकता था मैं डालता था। मैंने उस पर अपनी अमीरी का तासुर तो खूब जमा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना खाली हो चुका था ये मैं ही जानता था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि मैं नायाब से शादी के बाद अब्बा से मिला ही नहीं, क्योंकि वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देती थी, और उसने मुझे अपने मामलात में इतना उलझा कर रख दिया था कि मुझे कहीं और सोचने और देखने की मोहलत ही ना मिलती। मेरा वो गरूर अब पछतावा सा बनकर रह गया था।
जब मैं अपने ही वालिद को आज़ादी से फ्लैट के अंदर ना ला सका तो ऐसा लगा कि मेरे अब्बा एक बार फिर से मुझ पर हंसकर बोले कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घायल सा हो रहा था और दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि फ्लैट पहुंचने पर कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि जिस पर मैं मजीद शर्मिंदा हो जाऊं। मैंने एहतियात से अब्बा को गाड़ी से उतारा और फ्लैट के दरवाजे को चाबी से खोलकर अब्बा को निहायत एहतियात के साथ अंदर लाने लगा। मगर जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सामने नायाब को देखकर मैं ठिठक कर रह गया। नायाब की आंखों में चमकने वाली बरहमी मुझ पर बिजली की तरह गिरी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हाथ बांधे खड़ी थी जैसे पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। यासिर, सब खैरियत है? इन्हें कहाँ लेकर आ गए हो? न सलाम न दुआ, ना ही उसने अब्बा की खैरियत मालूम की। उसकी आवाज का सर्द लहजा मेरे अंदर एक चुभन छोड़ गया था। मैंने अब्बा के थके मांदे चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी और बेबसी वाज़े थी। मेरा दिल बगावत पर उतर आया। मैंने नायाब की तरफ रुख करते हुए सख्ती से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इन्हें लेकर कहाँ जाना था? जाहिर है मैं अपने ही घर लेकर आया हूँ। नायाब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कंधे झटके। तुम भूल रहे हो कुछ इस घर के हवाले से। बाय द वे, ये घर किसका है तुम अच्छे से जानते हो। ये जुमला मेरे सीने पर जैसे हथौड़ा बनकर लगा। अब्बा ने ये अल्फाज सुने तो उनके कदम लड़खड़ाए। शायद दिल के किसी कोने में वो पहले ही इस सलूक के लिए तैयार थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें कंधों से सहारा दिया और घूर कर नायाब की तरफ देखा, मगर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब्बा की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वो इतनी बेबसी से मुझे देख रहे थे कि मेरा दिल चाहा सब कुछ छोड़कर बस उनके साथ कहीं चला जाऊं। मैं उन्हें सोफे पर बिठाकर बोला, अब्बा आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। वो धीरे से मुस्कुराए, मगर इस मुस्कुराहट में वो चमक नहीं थी जो मैं हमेशा उनके चेहरे पर देखता था। मैं किचन में गया ताकि उनके लिए सूप बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने चूल्हा जलाना चाहा, नायाब गुस्से से दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में शोले थे, जैसे सब कुछ अभी जलाकर राख कर देगी। ये सब क्या हो रहा है यासिर? हमने शादी के वक्त क्या वादा किया था? मैंने बेबसी से सर झटका। नायाब, वो बीमार हैं, इस वक्त उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और तुम्हारा भाई, वो किस मर्ज की दुआ है? वो मर गया है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बाप को उठाकर अपने कंधों पर लेकर फिरो? उसने तंज मारा। मैंने गहरी सांस ली और मुफाहत का अंदाजा करते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखो नायाब, जब अब्बा ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वहाँ भेज दूंगा। खुदारा सिचुएशन समझने की कोशिश करो, लेकिन अभी चुप रहो, प्लीज चुप रहो। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में इस किस्म की मदाखलत नहीं, समझे या नहीं? ये मदाखलत नहीं, मेरा फर्ज है। और जो वादे तुमने मुझसे किए थे वो क्या थे? वो तुम पर फर्ज नहीं है क्या? वो चीखी। नायाब, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, अब्बा सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें अपने अब्बा की परवाह तो है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हें उसकी कतन कोई परवाह नहीं। वो मुंह फुलाकर बोली तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे हर पल हर लम्हे सिर्फ तुम्हारी परवाह है नायाब, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अब्बा अभी अभी मौत के मुंह से निकले हैं। तुम्हें पता है वो बारिश में भीगने की वजह से कितने बीमार हो गए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो यकीन रखो मैं खुद को कभी भी माफ ना कर पाता। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है। बस कुछ दिन के लिए बर्दाश्त कर लो। जो ही वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वापस भिजवाने का इंतजाम कर दूंगा। वो कुछ लम्हे मुझे घूरती रही और फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गई, लेकिन उसके बाद उसका रवैया और ज्यादा तल्ख हो गया। कभी वो खाने की मेज पर बर्तन जोर से रखती, कभी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती कि मैं अब्बा के सामने शर्मिंदा सा हो जाता। लेकिन जाहिर है मैं कोई भी रद्द अमल नहीं दे पाता, क्योंकि मैं जानता था कि चीज़ें मजीद भयानक हो जाएंगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से सेट हुआ था, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। मैं जानता था कि मेरी जिंदगी की ये तमाम आसाइशें नायाब की मरहूने मिन्नत थीं, और अब तो मुझे उनकी आदत हो गई थी कि इनके बगैर तो तसव्वुर ही मुहाल था। और मैं नायाब को नाराज करके अपनी पहली वाली जिंदगी में आना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत ही सब्र के साथ मैं नायाब के रवैयों को बर्दाश्त कर रहा था कि बस थोड़े दिन की बात है, फिर मैं अब्बा को वापस भाई की तरफ किसी न किसी तरह भेज दूंगा और ये चीजें दोबारा से मेरे और नायाब के दरमियान बेहतर होने लगेंगी। इसलिए मेरा तमाम फोकस
अब्बा की जिम्मेदारी में था कि किस तरह से वो भले चंगे हो जाएं, और मैं अपने मकसद में बहुत तेजी से कामयाब भी हो रहा था क्योंकि अब्बा की हालत बेहतर होने लगी थी। मगर जैसे ही वो जरा संभले, नायाब ने मुझ पर शदीद दबाव डालना शुरू कर दिया। यासिर, अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं बताते कि वो आकर इनको ले जाएं? तो मैं आहिस्ता से कहता कि वो वहीं से तो आ रहे हैं। अगर उसे इतना ख्याल होता तो कम से कम उनके आने के बाद एक बार फोन करके अब्बा की खैरियत तो मालूम कर लेता। अब जब तक अब्बा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं उन्हें दोबारा से उस जहन्नम में कैसे भेजूं? तो क्या सारा फर्ज तुम्हारा ही है? वो बरहम लहजे में बोली। कैसा भाई है तुम्हारा? आखिर उसे कब ख्याल आएगा कि वो अपने बाप को लेकर जाए? वो रोज मुझे बातें सुनाती जैसे मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। इसलिए एक दिन मैंने तंग आकर भाई को फोन किया। वो अगले दिन भाभी के साथ आ गया। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर भाभी के तासुरात देखकर अंदाजा हो गया कि वो अब्बा को साथ ले जाने के मूड में नहीं है। भाई खामोशी से बैठा रहा, मगर नायाब के चेहरे पर जहर घुला था। मैं भाई के खाने पीने का खूब एहतमाम करना चाहता था, मगर नायाब ने सिर्फ चाय और बिस्किट रखे तो मैं खामोश हो गया। मैं, भाई और भाभी आपस में बातें किए जा रहे थे कि अचानक नायाब ने तंजिया लहजे में पूछा, वैसे आप दोनों अब्बा को लेने आए हो या बस खैरियत दरियाफ्त करने? भाभी तो नायाब से भी 2 हाथ आगे की चीज थी। एकदम तेजी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत वाज़ेह है, नायाब ने हाथ बांधकर कहा। आप लोगों ने अब्बा को यहाँ छोड़ दिया और आराम से बैठ गए, लेकिन हमारी भी कोई जिंदगी है। हमने नहीं कहा था कि अब्बू को अपने पास रखो। भाभी का लहजा तल्ख हो गया। हमने नहीं रखा, वो खुद आए हैं, नायाब तड़प कर बोली। तो भाभी का लबो लहजा भी ऐसा ही हो गया। हाँ, तो अगर आ गए हैं तो थोड़ी खिदमत तुम भी कर लो, क्या हर्ज है? हमने खिदमत की है ना। हॉस्पिटल के तमाम बिल्स हमने ही पे किए हैं, और ये हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। आप लोगों ने तो उसमें से कोई भी शेयर नहीं किया, सब कुछ मेरी कंपनी ने पे किया है। अगर तुम्हारी कंपनी ने पे किया है तो इसमें हम क्या करें? जाहिर है बाप जिस घर में होता है वो ही इलाज मुआवजा भी करवाते हैं। जब तक अब्बू हमारे घर थे हमने भी खूब इलाज मुआवजा कराया, लेकिन कभी तुम लोगों को जताया नहीं। कमाल है, जरा से पैसे क्या लगा दिए कि फौरन ही जताने बैठ गई हो। मैं जता नहीं रही, बस अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें और इनकी देखभाल करें। जाहिर है हमें ऑफिस जाना होता है, जबकि आप तो घर ही बैठी रहती हैं, आपके लिए तो कोई मसला भी नहीं है। तो भाभी एकदम से गुस्से से बोली, अब्बू इतने बीमार हैं, इन्हें अच्छे इलाज मुआवजे की जरूरत है। हम अभी अब्बू को रखने की पोजीशन में नहीं हैं। तो क्या हम पोजीशन में हैं? नायाब की आवाज़ ऊंची हो गई। यासिर के पास दौलत आ गई है तो क्या अब ये सब की जिम्मेदारी उठाएगा? मेरे जब्त की हद खत्म हो गई। बस करो नायाब, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? तुम खुद बताओ, ये इतने दिन हॉस्पिटल रहे, तुम्हारे भाई ने आकर इनका पता भी किया, अब भी तुम्हारे बुलाने पर ये आए हैं। वो चीखी, नायाब अब बस कर दो, मेरे ख्याल में तुम काफी बात कर चुकी हो। भाई और भाभी खामोश थे और अब्बा का चेहरा जर्द पड़ गया था। बेटा यासिर, तुम चुप रहो, लड़ो मत। वैसे भी मैंने अब नासिर की तरफ ही जाना है। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया गया हो। मैंने अब्बा की तरफ देखा, वो इतने बेबस लग रहे थे कि मेरी आंखें भीग गईं। मैं सोचने लगा, ऐसी अमीरी का क्या फायदा अगर मैं अपने बाप की खिदमत भी ना कर सकूं। मैंने नायाब को बेबसी से देखा, जिसने मेरी इज्जत की जरा भी लाज ना रखी। मैंने एकदम अब्बा से कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। मेरी अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि नायाब ने सख्त लहजा अपनाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, अगर नासिर भाई साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या मसला है? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। नायाब, अगर अब्बू यहाँ नहीं रह सकते तो फिर शायद मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। मेरे इस जुमले ने कमरे में खामोशी फैला दी। नायाब का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसने आहिस्ता से कहा, मतलब ये कि अगर तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकती तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले में आज़ाद हूँ। ये जुमला बोलकर मैंने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उन्हें यकीन दिला रहा हूँ कि अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। नायाब ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर कोई लफ्ज ना निकल सका। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ। और वो लम्हा जब मैंने अब्बा को सीने से लगाकर कहा,
ابا آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے زیادہ تو نایاب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اس کا بے دام غلام کبھی اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے گا، لیکن آج میں نے صرف اس کے سامنے سر نہیں اٹھایا بلکہ اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے بھی اپنی عزت نفس کو روندنے سے بچا لیا۔ نایاب غصے سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میرے گھر کے حالات اس قدر نایاب کی وجہ سے زہریلے ہو چکے تھے کہ میرے بڑے بھائی نے مزید یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ بھابھی کو لے کر ہمارے گھر سے جلدی ہی نکل گئے۔ ابا مجھے کہتے ہی رہ گئے کہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تمہاری زندگی کہیں میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے، بہو غصے کی بہت تیز ہے۔ تو میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ اس کے مزاج کی فکر نہ کریں، وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں اپنا فیصلہ تو کر ہی چکا تھا، لیکن مجھے یہ اچھے سے اندازہ تھا کہ اب میں ایک آتش فشاں پر کھڑا ہوں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں کمرے میں آیا تو نایاب خاموش ہی رہی۔ حالانکہ وہ خاموش رہنے والی آسامی نہیں تھی، میں کن اکھیوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور میرے کان اس کے دھماکے دار آواز سننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کی چپ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تو میں دل ہی دل میں لرزنے بھی لگا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر ڈالے، کیونکہ اس سے مجھے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ جتنا جلدی محبت جتاتی تھی اور اتنی ہی جلدی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا کہ وہ میرے فیصلے سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کی یہ خاموشی محض ایک دھوکہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے والد کے لیے ایک انجانی سی نفرت ابھرنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر اس کے رویے میں آئے بدلاؤ کو محسوس میں کر رہا تھا۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر طرح سے کوشش کرنے لگا، اسے پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا۔ ابا کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، لہٰذا میں نے دفتر جانے کا سوچا، کیونکہ اس کا بھی زیادہ وقت گھر کی بجائے دفتر میں گزرتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس طرح اس کے قریب رہنے کا مجھے موقع مل جائے گا، کیونکہ گھر میں تو اس نے اپنا روم میرے روم سے الگ کر لیا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک ہفتے بعد دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا۔ میرے کام کے اوقات سخت تھے، اکثر صبح نکلتا اور رات گئے لوٹتا۔ ایسے میں زیادہ تر ابا سے فون پر ہی بات ہو پاتی۔ میں جب بھی فون کرتا تو وہ سوئے ہوتے۔ ملازم اکثر مجھے یہی سٹیٹمنٹ دیا کرتے، اور اگر کبھی جاگ بھی رہے ہوتے تو ان کی آواز اتنی کمزور ہوتی کہ میں پریشان ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں محسوس کرنے لگا کہ ابا کی حالت مزید بگڑ رہی تھی، ان کی بھوک بھی کم ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ اکثر غنودگی میں رہتے تھے۔ پہلے وہ میرا انتظار کیا کرتے تھے، اب تو وہ جیسے مجھ سے ملنے سے بھی قاصر ہو چکے تھے۔ ان کی رنگت بھی پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، مگر جیسے ہی میں نے یہ بات نایاب سے کی، وہ فوراً بھدک کر بولی، ارے یاسر، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ابا کو چیک اپ کی ضرورت ہے تو انہیں اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے فیملی ڈاکٹر بہت ہی قابل ہیں، ایسے میں انہیں باہر لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کال کر دیتی ہوں، وہ انہیں گھر ہی آ کر دیکھ لیں گے۔ تو میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ میرے ابا کے لیے فکر مند ہوئی ہے۔ لہٰذا میں نے خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے میری پرنسس کی خوشی، میں یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اس معاملے کو بہت اچھے سے سلجھاؤ گی۔ تو وہ میری بات سن کر مسکرا دی اور پھر واقعی اس نے میرے سامنے کھڑے کھڑے جب ڈاکٹر کو کال کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو مجھے نایاب پر بے پناہ پیار آیا۔ وہ اتنی تفصیل سے ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتا رہی تھی کہ میں دنگ رہ گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹر ابا کے پاس آیا، ان کا معائنہ کیا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انکل بالکل ٹھیک ہیں، ظاہر ہے اتنی بڑی بیماری کاٹی ہے تو کمزوری تو آئے گی، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں چند طاقت کی دوائیاں لکھ دیتا ہوں، وہ آپ انہیں وقت پر پلا دیا کریں تو یہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں کافی مطمئن ہو گیا اور فوراً ہی میں نے ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن منگوا لی، لیکن ابا کی صحت تو دن بدن گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی برف کی طرح بس گھلتے جا رہے تھے۔ میں ان کی صحت کی وجہ سے بے پناہ پریشان رہنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ کیا ڈاکٹر بھی آئے دن آ کر ان کا معائنہ کرتا اور مجھے تسلی دیتا؟ لیکن میرا دل انتہائی بے چین رہنے لگا۔ تو میں نے نایاب سے کہا
कि मैं उन्हें एक बार हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तो वो मेरी बात सुनकर एकदम से फट पड़ी और बोली कि आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारे अब्बा को घर आकर देख रहे हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। बाहर के डॉक्टर क्या हमारे फैमिली डॉक्टर से ज्यादा लायक हैं? तो मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मुतमईन नहीं हो रहा था। मेरे दिल में कुछ खटका सा भी हो रहा था। अब्बा की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी और हर बार जब मैं किसी अच्छे अस्पताल ले जाने का कहता, नायाब उसी डॉक्टर को बुला लेती जो वही पुरानी बात दोहरा देता। एक दिन मेरी कजन नाजिया अब्बा को देखने के लिए हमारे घर आई और जिसे मैं भी पसंद करता था, मगर नायाब की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अगर हमारे दरमियान नायाब ना होती तो शायद मेरी पहली तरजीह नाजिया ही होती। नाजिया अब तक गैर शादीशुदा थी, शायद मेरे लिए उम्मीद रखे हुए थी। जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर उसके लिए पछतावा होने लगा। वो अब भी वैसे ही थी, खामोश तबीयत, आंखों से बोलती हुई। उसने जब अब्बा को देखा तो फौरन चौंक गई। यासिर, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ। तो मैंने उसे बताया कि हमारा फैमिली डॉक्टर अब्बा का चेकअप करता रहता है। वो कहता है कि बीमारी और बुढ़ापे की वजह से इनकी ये हालत है। तो नाजिया ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि किसी और डॉक्टर को दिखाने में आखिर हर्ज क्या है? जब इन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बेहतर है कि मेडिसिन चेंज कर ली जाए और किसी और डॉक्टर को दिखा लिया जाए। तो मैंने उसकी तायीद की, क्योंकि दिल ही दिल में मैं भी तो यही चाहता था कि अब्बा को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन नायाब की वजह से मैं अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर पाया था। लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन नायाब घर पर नहीं थी, लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और अब्बा को फौरन अस्पताल लेकर गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई, वो पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है, इसलिए इनकी ये हालत हो रही है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। घर में मेरे और नायाब के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। नायाब मेरे कमजोर और मासूम बाप को मारना चाहती थी। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म में खून खौलने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत की जिंदगी की खुशी मेरे लिए मुकद्दम थी, वो मुझसे मेरे बाप की जिंदगी छीनने की कोशिश करेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना बेवकूफ था कि नायाब पर अंधा इत्मीनान करता रहा। मैंने अपने वालिद को जरूरी इलाज के बाद नाजिया के घर ले जाकर कहा, जब तक मैं इनके लिए कोई और बंदोबस्त नहीं कर लेता, इन्हें अपने पास रखो। और फिर एक मोटी रकम निकालकर मैंने नाजिया के हाथ पर रख दी। नाजिया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ये पैसे रखो अपने पास यासिर, हर रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही अपनाया जा सकता है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अब्बा को नाजिया के हवाले किया और घर वापस आ गया। अब मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, नायाब से बदला कैसे लूं? मैं नायाब को वही सजा देना चाहता था जो उसने मेरे वालिद के लिए सोची थी, मगर मैं ये सब जज्बात में आकर नहीं करना चाहता था। मैं उसे सोच समझकर बर्बाद करना चाहता था। मैंने उसे जब बताया कि मैंने सिर्फ उसकी खुशी की खातिर अब्बा को वापस भेज दिया है, तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। तो वो खुशी से मेरे सीने से आ लगी। मैं उसके सामने ऐसे बन गया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो मेरी गैर मौजूदगी में अब्बा के साथ क्या कुछ करती रही है। मैंने उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत जतानी शुरू कर दी। मैं उसे महंगे तोहफे देने लगा, उसे बाहर घुमाने के लिए जाने लगा ताकि वो ये समझे कि मैं अब भी उसके काबू में हूँ। और फिर मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। लिहाजा सबसे पहले मैंने घर की मुलाजमीन पर काम करना शुरू किया। उन्हें वो इज्जत दी जो उन्हें कभी भी इस घर में नहीं मिली थी। उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी और उनकी इतनी वेलफेयर की कि नायाब से ज्यादा अब मेरी वफादारी का दम भरने लगे। और फिर मैंने बहुत ही आसानी के साथ उनसे उगलवा लिया कि अब्बा को किस चीज़ में जहर मिलाकर दिया जाता था। मैंने बहुत ही तरीके से नायाब के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जिसमें उसका जहर देने का सबूत भी शामिल था। फिर मैंने वो वार किया जिससे नायाब की दुनिया हिल गई। एक रात मैंने बातों ही बातों में नायाब से कुछ फाइल्स पर उसके दस्तखत ले लिए। उसको शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर बैठी है। असल में मैंने सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया था और उससे पता भी ना चलने पाया। कुछ दिन बाद मैंने अपने वकील के जरिए नायाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब पुलिस हमारे घर आई तो नायाब हैरान रह गई। ये क्या हो रहा है? तुम्हें अपने जराइम की सजा मिल रही है नायाब। तुमने मेरे वालिद को जहर दिया और अब तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद हैं। नायाब तिल मिला गई। यासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने तुमसे कहना था नायाब, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकती थी।
नायाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो चीख रही थी मगर अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी तमाम मनकूवा और गैर मनकूवा जायदाद का मैं अब इकलौता वारिस था और अब वो चाहकर भी अपने लिए एक अच्छा वकील नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नायाब को उसके किए की सजा मिल गई तो मेरे दिल में भी ठंडक पड़ गई। मैं सीधा नाजिया के पास पहुंचा। अब्बा को देखा तो वो अब पहले से ज्यादा बहुत बेहतर लग रहे थे। मैंने तो तशक्कुर अमेज नजरों से नाजिया की तरफ देखा कि वो अगर ना होती तो शायद मेरे अब्बा इस दुनिया में ना होते। वो नायाब के हाथों से सिसक सिसक कर मर जाते और मुझे बेवकूफ को पता भी ना चलता। मैंने अब्बा के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। अब्बा, अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन मैंने ये जाना कि जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता बल्कि महज रिश्ते इंतहाई जरूरी होते हैं। लिहाजा मैंने बहुत सोचने के बाद बिलाखिर नाजिया से निकाह का फैसला किया। मेरी बात सुनकर फिरते जज्बात से नाजिया का चेहरा गुलनार हो गया।